Hello class, welcome to our LFS online class. Myself Sandhya Tiwari, your geography teacher. We have started chapter 6 and also we are on the topic textile industry. This topic comes under on the basis of source of raw materials used. Okay, so let's start the remaining part of cotton textiles. Okay, in the previous class we have started cotton textiles. So let's start. In the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. You have seen that in the early time of the this see this area, we have focused on this area, especially the area where cotton grown. Okay, see, first of all Maharashtra, and where is Maharashtra, and also in Gujarat. Okay, these are the two places where we focus very our main focus is on these two states. Which states? Gujarat and Maharashtra. Why beta? Because these areas are cotton growing. Okay, cotton growing belt. Availability of raw cotton, market, transport including accessible port facilities, labor, moist climate, etc. contributed towards its localization. Why we have choose to locate these two states, especially for cotton or for industries? Okay, because this area is located. All facilities are available here. Here also market located. From here we can get raw materials also. Also labor provided here, and also other facilities, transport facility also available here, and also moist climate. Okay, these are the special things which we get in these states for the growing of cotton. Okay beta, this industry has close links with agriculture and provides a living to farmers. These industry, जो ये इंडस्ट्री है, ये क्लोज किससे बहुत क्लोज है? एग्रीकल्चर से बहुत क्लोज है. ओके, एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स, और ये क्या प्रोवाइड्स करती हैं? लिविंग टू अ फार्मर. कॉटन बॉल प्लकर्स, जैसे कि हम कई सारे लेबरर को यूज़ करते हैं, कुछ को हम कॉटन प्लग करने के काम में लगा देते हैं और कुछ वर्कर्स को हम इंगेज कर देते हैं. इसमें कई वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है. सो देखिए आप लोग उनके जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट कॉटन बॉल प्लकर्स की ज़रूरत है. फिर उसके बाद से गिनी मीन्स चरखी जो होता है उटाई करने की. फिर स्पिनिंग की भी ज़रूरत पड़ती. स्पिनिंग मीन्स स्पिनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड्स आउट ऑफ रॉ फाइबर्स. ओके, and next weaving is the process of taking threads and making them into clothes. ओके बेटा, एंड नेक्स्ट डाई कपड़ों को रंगना भी. फिर आफ्टर दैट डिज़ाइन देना, एंड आफ्टर दैट पैकिंग करना भी, ये भी लेबरर की ज़रूरत पड़ती है. टेलरिंग एंड सीविंग, टेलरिंग सिलाई करना, फिर उसको टाके लगाना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. फॉर दिस वी नीड लेबरर. ओके, the industry by creating demand supports many other industries such as chemicals and dyes, packaging materials and engineering works. They are also engaged in this industry need demands of all these. While spinning continues to be centralized in Maharashtra,
Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, zari, and embroidering, etc. And you have seen that while spinning, जब स्पिनिंग जो होता है, जो कॉटन को थ्रेड कॉटन को जब कॉटन क्लोथ में कन्वर्ट किया जाता है, उस समय ये इसका मध्य किसको बनाया गया? महाराष्ट्र बनाया गया, गुजरात बनाया गया, फिर आपका ये तमिलनाडु बनाया गया। ओके, तमिलनाडु। वेविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज मीन्स विकेंद्रीकरण टू प्रोवाइड स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग, जो उनको एक स्कोप प्रोवाइड करना था, जो कि स्किल्स हैं उनके अंदर, जो डिजाइंस ऑफ वेविंग हैं, किसके अंदर? एक कॉटन क्लोथ बनाने में कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, एक स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है, उसमें डिज़ाइनिंग करना पड़ता है, उसमें एम्ब्रॉयडरी देनी पड़ती है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके, इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, but weaving supplies low quality of fabric as it cannot use much of the high quality yarn produced in the country। और फिर एक देखा जाए तो इंडिया का जो है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है, किस फील्ड में? स्पिनिंग में हमारा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन है, लेकिन थोड़ा सा हम वेविंग को लेकर के थोड़ा सा हम बैक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो फैब्रिक की सप्लाई है वो क्या है? लो क्वालिटी है। ओके, एज इट कैन नॉट टू मच यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न, जो कि कंट्री में जो हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस होता है उसको ना यूज़ करके क्या होता है कि हम जब लो क्वालिटी के यार्न को जब उसको यूज़ करने लगते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी जो गुड्स की क्वालिटी है वो कम होने लगती है। सो वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। दैट्स वाई ये वीविंग किसके जरिए किए जाने लगा? हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। द हैंड स्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। जो हम देखते हैं कि खादी के कपड़े आप लोगों ने भी देखा होगा, ये क्या है? ये खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। किसके? वीवर्स इन देयर होम्स, जो कि अपने घर में काम करते हैं, इसको क्या कहते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री। And also here once again one question arises here, that why is it important for our country to keep the mill sector loomage lower than power loom and handloom? इसके पीछे क्या कारण है? यस, पावर लूम एंड हैंडलूम। जो पावर लूम है और जो हैंडलूम है, क्या है ये? प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम देती है। किस एरिया में? इन रूरल एरियाज। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह रूरल एरिया में काम देती है। ठीक। ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ देयर लिविंग। यह एक उनके जीविका का मेन स्रोत है। ठीक है। इट इज़ टू अवॉइड सच सर्कमस्टेंसेज एंड टू मेक रूरल पीपल सेल्फ सफिशिएंट। और हमें ये भी कोशिश करना है कि रूरल लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना। द इंडस्ट्रियल और मिल लूमेज इज़ ऑलवेज केप्ट। इसलिए जो इंडस्ट्री जो है, मिल है और लूमेज है, उसको हमने हमेशा लोअर रखने की कोशिश की, लोअर देन द पावर लूम्स एंड हैंड लूम्स। गॉट इट बेटा? आई थिंक गॉट इट, इजंट? सो इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। इंडिया किसको यार्न एक्सपोर्ट करती है? जापान।
अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर, और भी कौन कौन से जो अदर कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया कौन कौन इंपोर्ट करता है? USA, UK, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। ओके, वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। हमारा वर्ल्ड के मार्केट में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर है किस फील्ड में? यस, इन कॉटन यार्न, इन कॉटन यार्न। Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce। और जो हमारा स्पिनिंग मिल्स हैं ये क्या है? सक्षम है मार्केट में compete करने के लिए, कंपटीशन के लिए हमेशा तैयार हैं। कैसे तैयार हैं? उनके अंदर क्षमता है चीज़ों को यूज करना। जो भी हम फाइबर्स यूज करते हैं उस फाइबर को वो लोग उस जैसे कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर प्रोड्यूसेस, जो भी फाइबर हम प्रोड्यूस करते हैं उसको यूज करने में ये लोग सक्षम हैं। द वीविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ हाई क्वालिटी यार्न दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। और जो वेविंग है, जो बुनाई का काम है, जो कि प्रोसेसिंग का काम है, ये जो यूनिट्स हैं ये लोग बहुत ज़्यादा जो हाई क्वालिटी यार्न है उसको जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होता है उसको नहीं यूज करते हैं। द वेविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज, नहीं यूज करते हैं क्या? मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। जो हमारे कंट्री में हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस होते हैं उसको नहीं यूज करते हैं। ओके, देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दिस सेगमेंट्स। इस फील्ड में हम देखें तो कुछ लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं, लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं, बड़ी भी फैक्ट्रीज हैं प्लस मॉडर्न भी फैक्ट्रीज हैं। बट मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज इन फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन हैं जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है, यूनिट्स में छोटे छोटे टुकड़ों में हमने डिवाइड कर दिया है। विच कैटर टू द लोकल मार्केट, जो कि लोकल मार्केट की कमी को पूरा कर सकें। दिस मिसमैच इज अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। ये जो मिसमैच है ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है किसके लिए? फॉर द इंडस्ट्री। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न while apparel garment manufacturers have to import fabrics. That's why what happens, many of our spinners they export cotton yarn and while clothes, garments and that manufactured to import fabric. Again one question arises here, why is it important for us to improve our weaving sector? हमें ज़रूरत है कि हम अपने वेविंग जो पावर है उसको इम्प्रूव करें, वेविंग सेक्टर को इम्प्रूव करें इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यार्न इन लार्ज क्वांटिटीज। लार्ज क्वांटिटी यार्न को एक्सपोर्ट करने से अच्छा है कि हम अपनी जो वेविंग सेक्टर है उसको इम्प्रूव करें। क्यों? व्हाट इज रीज़न बिहाइंड दिस? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, जो हमारे यहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है क्या है? रूरल इन इंडिया अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस में जुड़े हुए हैं? एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। एंड इज इन्वॉल्व इन वेविंग क्लोथ, जो कि वेविंग क्लोथ में भी इन्वॉल्व हैं। वेविंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द रूरल
पीपल, जो वेविंग है यह एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, किन लोगों का, रूरल एरिया के लोगों का। ओके, सो ऑल्दो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन, इसलिए हमने कोशिश किया है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके होगी गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन, लॉन्ग स्टेपल कॉटन, जो कि लॉन्ग जो रुई का फाहा होता है वो गुड क्वालिटी का हो। द नीड टू इम्पोर्ट इज स्टिल फेल्ट, पावर सप्लाई इज इरेक्टिक, पावर सप्लाई जो क्या है अनियमित है, इरेक्टिक मीन्स अनियमित है। एंड मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड इन द वेविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन पर्टिकुलर, और हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, मशीनरी, जो उसकी मशीनरी नीड्स जो कि उसको अपग्रेड करने की, न्यू फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत है। अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर एंड स्टीफ कंपटीशन, और अदर क्या है, जो कि हमारे जो मार्केट में बड़ा ही कठोर कंपटीशन है विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, किससे से हमारा कंपटीशन है, ये सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से कंपटीशन है, बहुत ही कठोर कंपटीशन है। तो इसलिए इस कंपटीशन को जारी रखने के लिए हमको भी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का गुड्स तैयार करने की ज़रूरत है। ओके, so today only this much, tomorrow we will start our next topic, that is jute industry. Okay, so write down your diary beta, homework here, learn question answer of chapter 4. Okay beta, is it clear? So today only this much. Thank you.